Good morning, students. In the previous class, I have explained you about interest on debentures and writing off of the discount on issue of debentures. So today I am explaining you problem based on both the concepts. So let us start with how to write the journal entries for interest on debentures. Here it is given on 1/4/2015, JK Limited issued 8,009% debentures of 1,000 each at a discount of 6%. So here the debentures are 8,000, 9% is the interest rate and 1,000 rupees each at a discount of 6%. Redeemable at a premium of 5% after 3 years. The company closes its books on 31st March every year. Interest on 9% debenture is payable on 30th September and 31st March every year. So they are paying 30th September and 31st March every year. The rate of tax deducted at source is 10%. So this generally will be given in the question itself. Pass the necessary journal entries for the issue of debentures and debenture interest for the year 31/3/2006. So हमें journal entries both के लिए लिखना है. एक है कि इशू ऑफ डिबेंचर्स के लिए और दूसरा है हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के लिए. तो फर्स्ट हम डिबेंचर्स इशू किए हैं 1 अप्रैल को, यहाँ देख सकते हैं 1 अप्रैल को. सो आई एम राइटिंग द फर्स्ट एंट्री हियर एज the first entry for this is 1/4/15. When we issue the debentures, I told you two entries we should write. One is bank account debit to debenture application and allotment account. This entry is compulsory. So in this, how much amount we'll take basically? So amount whatever is collected we should write in this. So as per the question, it is given that there are 8,000 debentures are there, multiplied by the debentures value is 1,000 but issued at a discount of 6%. So we'll be collecting 6% less than 1,000. Yani 6% on this is 60 rupees. Okay, 60 if you minus 7,940. So if you multiply with the 8,000, 1,000 if you minus 6 rupees, 6 by 100 yani 60 rupees. If you minus from this 940 into 8,000, if you multiply, it will give you 75,20,000. 75,20,000. This is the first journal entry. As in my previous video I have explained you about this. First we write always whatever it may be the situation, whether issued at par, premium, discount, redeemable at par, premium, discount, this entry remains same. Bank account debit to debenture application and allotment. But here we should take the amount what we collect. यहाँ पे हम एंट्री सेम रहेगा कोई भी सिचुएशन में, लेकिन अमाउंट लेते वक्त हमें देखना है कि कितना अमाउंट, हाउ मच अमाउंट वी हैव कलेक्टेड. सो इफ़ यू सी हियर 8,000 डिबेंचर्स वी हैव इशूड. ईच डिबेंचर वैल्यू इज़ 1,000. एक एक डिबेंचर का वैल्यू 1,000 है और 6% हमने डिस्काउंट में इशू किया, तो 6% कम आएगा हमारे लिए. तो 1,000 में से 6% माइनस करेंगे तो 1,000 इंटू 6/100 विल गिव यू 60. 1,000 minus 60 is 940 here. 940 into 8,000 is 75,20,000. This is the first entry. On the same day, as you know, this is for application money received, and on the same day we write one more entry, that is this should be debited here, debenture application and allotment account debit, and I ask you to leave 2 spaces. Then you should write to 9% debentures, and debentures value we should write with the face value, that is 8,000 into 1,000. There is no change, so it will go as 80 lakhs. और डिबेंचर अप्लीकेशन का अमाउंट सेम रहेगा जो यहाँ पे लिखे हम 75,20,000. ये एंट्री हो गया. अब हमें बीच में क्या इंक्लूड करना है, ये डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन हाउ वी हैव इशू. सो पहले तो हमें ये 2 एंट्री कॉमन है सबके लिए. फर्स्ट लिखेंगे बैंक टू डिबेंचर अप्लीकेशन अलॉटमेंट, उसके बाद डिबेंचर अप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिबेंचर्स. अब देखना है कि इशू कैसे किए हैं. इफ़ इशूड एट ए डिस्काउंट we write discount here. If it issued at a premium, we write security premium here. If we issued at par, we don't write anything. Then we'll see about redemption, but first we finish issue. So issue में हम यहाँ देखें डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं, तो डिस्काउंट will be debited here. So obviously discount will be debited, which you can combine by writing both या separately. Discount on issue of debentures कितना होगा ये, बेसिकली 6% यानी 60. सो
डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ 4,80,000 होगा. ओके 4,80,000 बिकॉज 60 इंटू 8,000 इंटू 60 रुपीज़ होगा ना, बिकॉज 1000 में 6% कितना होता है, 6/100 इज 60, और इसमें से 1000 में से 60 माइनस करेंगे. यहाँ पे 1000 माइनस 60 इज़ 940, और 940 इंटू 8,000 इज 75,20,000, और यहाँ पे हमें 60 रुपीज़ डिस्काउंट है. सो 60 इंटू 8 4,80,000. नाउ इशू पार्ट इज़ ओवर. वंस यू सी द इशू पार्ट इट विल टैली 75, 79, 80 लाख, 80 लाख. इशू पार्ट इज़ डन. नाउ वी शुड सी, अगर ये हो गया, इशू हो गया, तो रिडम्पशन भी एक बार चेक कर लेना. रिडम्पशन एट पार है तो इग्नोर, यहाँ क्लोज कर देना. रिडम्पशन एट प्रीमियम है तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम, यहाँ तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, यहाँ पे लॉस ऑन इशू, दो अकाउंट को ऐड करना होगा. तो इस क्वेश्चन में बताया गया हमको कि 9% डिबेंचर्स है ये, और रिडीमेबल आफ्टर 3 ईयर्स एट ए 5% प्रीमियम बताया गया. तो हमें यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लिखना है. प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स यानी 5%, यानी 80 लाख पे 5%. इस टोटल अमाउंट फेस वैल्यू पे 5 लाख, कभी भी परसेंटेज फेस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है. तो 5% एंड 80 लाख बिकम्स 4 लाख. ये 4 लाख हमारे लिए लॉस है. सो लॉस को भी डेबिट करते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स. इस कॉन्सेप्ट पे हम प्रॉब्लम भी किए थे इससे पहले, और मैंने एक्सप्लेन किया हूँ कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम भी. सो एक बार चेक कर लीजिएगा, फिर से लर्न कीजिए. कोई डाउट है तो फिर हम डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में. ये तो इशू वाला एंट्रीज है, आप लोगों को तो पता ही है. दिस विल बी फॉर इशू ऑफ जनरल एंट्रीज, इशू ऑफ दिस वन. नाउ वी आर राइटिंग फॉर द इंटरेस्ट. सो लेट अस कैलकुलेट हाउ वी आर गोइंग टू पे इंटरेस्ट. फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, face value of debentures is 80 lakhs irrespective of the issue at what we have issued, at par, at premium, at discount, कुछ भी हो, लेकिन face value इसका 80 lakhs होगा. and then on 80 lakhs the percentage is given as 9%, so 9/100. so our interest would be like 7,20,000 total per annum. this is per annum, but we are paying semi annually. 30th सितंबर को पेमेंट कर रहे हैं और 31st मार्च को पेमेंट कर रहे हैं एवरी ईयर. सो इफ़ यू डिवाइड इट इनटू 2, दिस विल बी 3,60,000 एंड 3,60,000. यानी वी हैव टू पे ऑन 31st मार्च को 3,60,000, 30th सितंबर को 3,60,000 हमें पेमेंट करना होगा एवरी ईयर. 3,60,000, 3,00,000 6 मंथ्स के एक बार. लेकिन पेमेंट में ये बताया गया 10% TDS है. So TDS will be calculated on the interest payable. So 3,60,000 को हम बाइफरकेट करते हैं यहाँ पे. 10% यानी 36,000 ये TDS होगा, और बाकी का 90% जो डिबेंचर होल्डर को हम पेमेंट करेंगे 3,24,000. दिस विल पे टू डिबेंचर होल्डर्स. द TDS विल बी सब्सट्रैक्टेड. सो एक बार फिर से समझ लीजिएगा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन. लेटर ऑन जर्नल एंट्रीज वुड बी सेम. जैसे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट, ये फेस वैल्यू पे डिबेंचर 80 लाख है हमारे पास. फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स 8,000 इंटू 1,000 रुपीज़ ईच, 8 लाख हो गया. इन पे हम 9% इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में दिया गया, तो 7,20,000 पर एनम हमें पेमेंट करना है. बट वी आर पेइंग वंस इन 6 मंथ्स. सो 6 मंथ्स यानी 3,60,000, अगेन 6 मंथ्स यानी 3,60,000. सो 3,60,000 सितंबर में और 3,60,000 मार्च में 6 मंथ्स को एक बार पेमेंट करते हैं. लेकिन क्वेश्चन में TDS दिया गया है 10%. सो लेट अस सी व्हाट इज़ 10% ऑन दिस. 3,60,000 पे 10% यानी 36,000 TDS होगा, और बाकी का 90% 3,24,000 हम पेमेंट करेंगे. सो अभी हमारा अप्रैल 15 है, हमारा जनरल एंट्री नंबर 1 अप्रैल 15 है. इसके बाद इंटरेस्ट हम कब पेमेंट करते हैं? अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में पेमेंट करते हैं, क्योंकि वंस इन आइदर सितंबर और इन मार्च. तो हमारे अप्रैल के बाद होगा सितंबर होगा, तो सितंबर 30 2015 ही होगा ना, सेम ईयर. तो सितंबर 30 2015 को हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना है, जिसके लिए पहले हम ड्यू एंट्री लिखते हैं. वो है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, जो 9% का अमाउंट होगा 6 मंथ्स के लिए 3,60,000. टू दो हैं हमारे, एक होगा डिबेंचर होल्डर्स, राइट,
डिबेंचर होल्डर्स को हम पेमेंट करते हैं, तो डिबेंचर होल्डर्स जिनको हमें पेमेंट करना है 3,24,000, और टू TDS पेएबल, जो हम लिखते हैं TDS पेएबल, जिसे लिखते हैं हम 36,000। ये हो गया इंटरेस्ट 30 सितंबर का। लेकिन इस दिन ये ड्यू एंट्री है, उसी दिन हमें पेमेंट करना है डिबेंचर होल्डर्स को। सो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि पेमेंट करना है उनको इंटरेस्ट, टू बैंक। ये हो गया हमारा 3,24,000 और 3,24,000। इसके बाद हमें टैक्स को भी पेमेंट करना है सेम डेट। सो TDS पेएबल, जो मैंने कल एक्सप्लेन किया था, डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करने के लिए डिबेंचर होल्डर टू बैंक, क्योंकि TDS भी पेमेंट करना है तो TDS पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये हो गया 36,000। सो 30 सितंबर को हमने पेमेंट कर दिया दोनों के लिए, और दोनों के लिए हमने ड्यू एंट्री भी लिख दिया है। दिस इज ड्यू एंट्री। फर्स्ट वी राइट ड्यू एंट्री, जो इंटरेस्ट को हम डेबिट करते हैं, डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करते हैं, TDS को भी पेमेंट करते हैं, और उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करने का एंट्री और TDS पेमेंट करने का एंट्री। नाउ आफ्टर 30 सितंबर और नेक्स्ट इंटरेस्ट वुड बी पेड ऑन 31 मार्च, वो भी 16 होगा, क्योंकि 15 के बाद 16 होगा। 31 मार्च 16। सो 31 मार्च 16 में फिर से वही एंट्री कॉमन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, वही 3,60,000। लेकिन इसमें से हम लिखेंगे डिबेंचर होल्डर्स, जो 3,24,000 होगा, और टू TDS पेएबल, वो भी होगा 36,000। सो दिस इज कॉमन। उसके बाद उसी डेट को हम, मतलब सेम डेट, ऑन द सेम डेट, दैट इज ऑन 31 मार्च 16 को हम लिखेंगे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। डिबेंचर्स होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, कॉमन जो लिखे हैं हम, सेम एंट्री रिपीट कर रहे हैं, वही अमाउंट जो 3,24,000 हम पेमेंट करते हैं। उसके बाद हमें लिखना है, उसी डेट को हमें लिखना है TDS पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये भी हो गया 36,000। अब हमें क्या करना है, 1 ईयर कंप्लीटेड हो गया, 31 मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है। तो व्हेन फाइनेंशियल ईयर इज क्लोज्ड वी नीड टू ट्रांसफर द इंटरेस्ट टू P&L। इंटरेस्ट टू P&L, जो मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू वी राइट एन एंट्री एज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर्स टू TDS पेएबल, डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, और ऑन पेमेंट TDS टू बैंक। लेकिन फाइनली इंटरेस्ट को कहाँ ट्रांसफर करना है, स्टेटमेंट ऑफ P&L टू इंटरेस्ट। लेकिन दिस विल हैपन ओनली ऑन 31 मार्च, जो लास्ट डेट में होता है। सो ये 31 मार्च है, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है। सो 31 मार्च, वही 31 मार्च को हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L, क्योंकि हमें ट्रांसफ़र करना है स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। और यहाँ टोटल इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करते हैं हम, दैट इज 7,20,000। दैट आइदर यू कैन गेट फ्रॉम योर कैलकुलेशन व्हाट यू डिड हियर, 7,20,000 पर एनम, या यहाँ देख सकते हैं आप 3,60,000 फर्स्ट एंट्री में 30 सितंबर में, 31 मार्च में आपने 3,60,000 डेबिट किया यहाँ पे, और इससे पहले भी आपने 3,60,000 डेबिट किया 30 सितंबर को। यानी दो अमाउंट होंगे आपके लिए, दोनों अमाउंट हैव टू बी ट्रांसफर्ड हियर। सो दिस विल गो ऑन टिल द डिबेंचर्स आर एग्जिस्ट, टिल द डिबेंचर्स आर रिडीम्ड। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स, यानी ये 16 का फिर सितंबर 16 को आपको लिखना होगा, फिर 31 मार्च 2017 को लिखना होगा। ऐसे 5 ईयर्स सेम कंटिन्यूस सेम एंट्रीज को रिपीट करना होगा। यू हैव टू रिपीट ऑल दीज एंट्रीज टिल 5 ईयर्स, बिकॉज डिबेंचर्स आर देयर विथ यू फॉर 5 ईयर्स। But here in the question he asked us to show only interest up to 31st March 2016. So we have shown it. So once again I am showing here. The first entry is common, as you know. We write bank to application and allotment, or application allotment to debentures लिखने के बाद we have to see whether it issued at a discount or premium.
If it is issued at a discount, we'll write here discount. If it is issued at a premium, then security premium. But here in the question, discount is issued, so discount we have written. Then loss on issue of debenture, because redemption में हमें premium है. उसके बाद interest का calculation, the problem I have explained, the concept I have explained yesterday. First we need to write a due entry, that is interest on debenture for 6 months, और debenture holder को payment करने का, और TDS है. Then debenture holders को payment कर लेंगे, then we pay TDS, then we write one more due entry, same repetition. These 3 entries have to be repeated once in 6 months. ये तीनों entries हमें repeat करना है once in 6 months में with same amount. और फाइनली वंस इन ए ईयर, यानी ईयर में एक बार इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को हमें स्टेटमेंट ऑफ P&L को ट्रांसफर करना है. वंस इन ए ईयर और फाइनेंशियल ईयर एंडिंग में स्टेटमेंट ऑफ P&L को ट्रांसफर करना है जब हम स्टेटमेंट ऑफ P&L प्रिपेयर करते हैं. सो होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. लर्न हाउ टू राइट द जर्नल एंट्रीज फॉर द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. इन माई नेक्स्ट क्लास आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का रिटर्न ऑफ करने का प्रॉब्लम. वो कॉन्सेप्ट भी मैंने एक्सप्लेन कर लिया था आप लोगों को.